آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کاہل اور چونٹی. کیا ہے ٹاپک آج کا؟ کاہل اور چونٹی. چونٹی یعنی کہ کیڑی. اب دنیا کے اندر بہت سارے پرندے ہیں, بہت سارے جانور ہیں, بڑے بڑے طاقتور ہیں, بڑے بڑے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں, لیکن چونٹی ہی کا ذکر کلام مقدس میں کیوں آیا؟ آج اس بات کو ہم سیکھیں گے. اگر خدا نے اس بھید کی بات کو آپ کی زندگی کے اندر دیا ہے تو اس پر غور کریں. کلام میں لکھا ہے اے کاہل. کاہل کون ہے؟ میں اور آپ ہی ہیں. ہم ہی کاہل ہیں, سست ہے. کاہل کا مطلب ہے سست, کلام کو نہ سننے والا پورے طور پر, نہ اس پہ عمل کرنے والا, اور سویا رہنے والا. اپنی فکروں کو بھول کر, ساری چیزوں کو بھول کر سستی پڑے رہنے والے بندے کو کہتے ہیں کاہل. اور لکھا ہے اے کاہل اس چونٹی پر غور کر. میں چاہوں گا بیٹی سے کہ وہ کھڑی ہو اپنے قدموں پر اور اس کلام کی تلاوت کریں. امثال کی کتاب اس کا 6واں باب اور اس کی 6ٹھی آیت کو ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے. ہاللیلویہ. زور سے, دھیان سے آپ نے اس آیت کو سننا ہے. امثال 6واں باب اس کی 6ٹھی آیت. اور جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو غور کرنا اپنی زندگیوں کے اوپر کہ کیا ہم ایسے تو نہیں, کیونکہ کلام کے اندر جو بھی آیت ہوتی ہے وہ مجھے اور آپ کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہے, جگانے کے لیے ہوتی ہے, سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. جی پلیز. خداوند کے زندہ کلام میں سے اے کاہل چونٹی کے پاس جا, اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظرانہ حاکم ہے, گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی خورش جمع کرتی ہے. اے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا, تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند, ایک اور جھپکی اور ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ. اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسئلہ آدمی کی طرح آ پڑے گی. آمین. خدا کے پاک کلام کے پڑھیں اور سنے جان پر خدا کی شکر گزاری ہو. آمین. میں خوش رکھے بیٹے اس کلام کے لیے زوردار تالیاں دیں. خدا مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہے اور وہ کہتا ہے اے کاہل چونٹی کے پاس جا. کیوں خدا نے کہا کہ چونٹی کے پاس جا؟ خدا نے کسی اور جانور کا ذکر نہیں کیا. بہت سارے ایسے جانور ہیں جو دنیا کے اوپر اپنی عمر کو لے کر آتے ہیں اور کچھ ایک ہی دن میں مر جاتے ہیں اور کچھ کئی سالوں تک زندہ رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ایک ہفتہ میں ہی اپنی زندگی کو کھو دیتے ہیں. نہ انہیں کوئی بیماری ہوتی ہے, نہ انہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے, انڈے سے نکلتے ہیں اور اٹھتے پھرتے ہیں اور خود بخود ہی ایک ہی ویک کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور جو چونٹی ہے, کتنوں کو پتا ہے کس کی عمر کتنی ہے؟ کسی کو پتا ہے چونٹی کی عمر؟ کسی کو؟ تو جو لکھ رہے ہیں وہ اپنے پاس لکھ رہے. چونٹی کی عمر 30 سال ہے. ہاللیلویہ. اور خداوند نے کہا اے کاہل چونٹی کے پاس جا اور اس سے سیکھ, اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن جا. خدا نے کہا اگر تیرے اندر راہی کے دانے جتنا ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کیا ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ خدا نے جو بھی آپ کو مثال دی, چھوٹی سی چیز کی مثال دی. راہی کا دانا, کشکاش کا دانا, یہ کہ بالکل چھوٹا سا دانا ہوتا ہے. اور ایک چونٹی جو ہے اگر اس کارپیٹ پر چلتی ہو تو کیا آپ اسے غور سے دیکھ لیں گے؟ اچانک کی نظر پڑ گئی تو پڑ گئی. اگر وہ یہاں پہ چل رہی ہوگی تو آپ کو دکھائی نہیں دے گی. کہ دے گی دکھائی آپ کو؟ چھوٹا سا کیڑا ہے, لیکن خدا کہتا ہے وہ بالکل چلا جا. اے کاہل اس کے پاس جا اور اس سے سیکھ اور کیا ہو, دانشمند بن جا. کون سی ایسی کوالٹی ہے اس کیڑی میں جس کا ذکر کلام مقدس میں خدا کی ذات اقدس یہ کہتی ہے کہ اے کاہل اور دیکھو جات سکھ. پادری کے بول مول کے تھک رہے ہیں, تیری سمجھ نہیں آ رہی. ہاں, آپ کو خادم کلام سنا رہے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. بڑے بڑے سورما جنہوں نے اپنی زندگی کلام کو دے دی, دن رات ان کی نگاہ شریعت کی کتاب پر لگی رہتی ہے, وہ کلام سنانے میں ویست رہتے ہیں, تانوں سمجھ نہیں آ رہی. تو انج کرو
پھر تسی کسی چونٹی کو ٹر جاؤ اور وہ دیکھو جا کے سیکھو تے دانش مند ہو جاؤ. کیا کوالٹی ہے چونٹی کے اندر؟ اس کیڑی میں کون سی ایسی کوالٹی ہے جو خدا آپ کو سکھانا چاہتا ہے؟ اور خدا چاہتا ہے کہ جو کوالٹی اس کے اندر ہے وہ تم میں بھی ہو. کیسی زبردست بات ہے. خدا چاہتا ہے کہ اس چونٹی میں کوالٹی ہے اور تواڈے چ بھی ہون. کوئی تو بات ہے اس میں، ہے کہ نہیں ہے تو ذکر ہے نا. کس نے آیت پڑھی ہے؟ میری بیٹی نے. میں آپ نے خود نہیں سنائی. کہاں سے پڑھی بیٹی کی آیت آپ نے؟ کلام مقدس میں سے اور امثال کی کتاب میں سے. اور اگر آپ امثال کی بک کا مطالعہ کریں تو یہاں پہ بہت سارے سست لوگ آپ کو دکھائی دیں گے. بہت ساری حکمت کی باتیں، بہت ساری دنائی کی باتیں آپ کو اس کلام مقدس امثال کی کتاب میں ملیں گی. کتنوں نے امثال کو پورا پڑھا ہے؟ تو پھر دنائی کتوں آنی ہے؟ پھر عقل آ سکتی ہے؟ پھر عقل نہیں آئے گی. جب آپ سیکھیں گے نہیں تو عقل کہاں سے آئے گی؟ آپ جب تک استاد کے پاس نہیں جائیں گے، آپ اس سے نہیں پوچھیں گے یہ کیا ہے، تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آئیے چند اس کی باتوں پر غور کرتے ہیں. چونٹی کے اندر جو ہمیں پہلی چیز ملتی ہے وہ کیا ہے؟ کیا وہ؟ کسی نے چونٹی کو دیکھا؟ کچھ کام کرتے ہیں. جب چونٹی کے پاس کوئی چیز آتی ہے نا تو وہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جتنی بڑی مرضی کیوں نہ ہو اپنے گھر لے کے جانے کی کوشش کرتی ہے. کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا کہ اپنے لیے کوئی چیز جو اچھی ہے اس کو جمع کریں؟ دنیا کی چیزوں میں ہم لگے رہتے ہیں اور ہم کبھی یہ چیز پرواہ نہیں کرتے کہ نہیں ہمیں اس کو کرنا ہے. چونٹی کے اندر جو ہمیں پہلی چیز ملتی ہے وہ اپنی کام کے لیے کبھی بھی سست نہیں پڑتی. جیسے ہم قائل ہیں. کیا ہم قائل ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ رات کو دعا کرنے کا وقت ہے تو کیا ہم اٹھ کے دعا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں. ایک چپکی اور لکھا نا، پڑے رہنے پہ ہاتھ، ایک جھینی کی چپکی اور کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں سے پڑھتے ہیں ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ. اسی طرح مسلح آدمی جو ہے، مسلح آدمی کون ہوتا ہے؟ چور، ڈاکو، لٹیرا جو آپ کو آتا ہے، مارتا ہے، ہلاک کرتا ہے اور آپ سے چیزیں لے کے چلے جاتا ہے. اس کے بارے میں ذکر ہے بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پہ ہاتھ. اسی طرح مسلح آدمی آئے گا اور وہ کیا کرے گا؟ تیرے سے جو کچھ ہے وہ چھینے گا، پکڑے گا اور تجھ سے لے کر نکل جائے گا اور تو کچھ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ تو سست ہے، تو نیند میں پڑا ہوا ہے، تو نیند سے جاگ نہیں سکتا اور تو کیسے اس کا مقابلہ کرے گا؟ کلام میں ہم نے دیکھا یسوع نے ابلیس کا مقابلہ کلام سے کیا اور یہاں پر بھی خدا کہتا ہے کہ اس چونٹی سے سیکھ لو. یہ کبھی کسی کام سے تھکتی نہیں ہے، یہ کبھی سست نہیں پڑتی. کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں اس کے اندر کام نہیں ہوتی. دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ چیز ہے کہ جب یہ کوئی کام کرتی ہے تو اس کو اینڈ تک لے کر جاتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ اس کام کو اینڈ تک لے کر جاتی ہے. آپ اگر دیکھیں کہ اگر کوئی چونٹی کے پاس کوئی چیز یہاں پہ پڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، کتنی بھی وزنی کیوں نہ ہو، وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرے گی، نہیں اٹھائی جائے گی تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دے گی. اور کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کی جو دوسری چونٹیاں ہوں گی وہ اس کی ہیلپ کرے گی. وہ کیا کرے گی؟ اس کی مدد کرے گی. آج ہم کلام کو سیکھنے کے لیے چرچ میں آتے ہیں. یہاں پہ ہماری ایک ٹیم بنی ہوئی ہے، 4 ایلڈر سب آئے ہیں. اس کے بعد ایک ورشپر ہے، ایک میوزیشین ہے. اس کے بعد ہم سب نے سب مل کر کیا کرنا ہے؟ ورشپ کرنی ہے. ہم سب کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ اتفاق. جیسے چونٹی کے اندر اتفاق ہے اور وہ اس کو کسی چیز کے لیے کہنا نہیں پڑتا. کلام کے اندر ہم نے لکھا ہے نہ تو اس کا کوئی سردار ہے اور نہ ہی کوئی اس کا ناظم ہے. چونٹی کا نہ تو کوئی سردار ہے اور نہ ہی کوئی ناظر ہے. کوئی بھی اس کو بتانے والا سمجھانے والا نہیں ہے. وہ حکمت کو لے کر آئی ہوئی ہے. اس کے اندر آٹومیٹکلی تنائی ہے اور اسے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ یہ میرے پاس آؤ میری مدد کر. اگر وہ کوئی کام کر رہی ہے تو دوسری آٹومیٹکلی اس کے پاس آئے گی اور اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑنا شروع کر دے گی اور جب تک وہ اپنا کام پورا نہیں کر لے گی وہ بیٹھے گی نہیں. اور آج ہم اپنے چرچز کے اندر دیکھتے ہیں کہ جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، جن کے کام لگائے ہوئے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں. اور ان کی زندگی کے اندر وہ کام اس کو جو انہوں نے توڑا نہیں ہوتا اس کو پورا نہیں ہونے دیتے. خدا کہتا ہے کہ جا اس چونٹی سے سیکھ کہ وہ نہ تو کسی کی مدد مانگتی ہے، نہ کسی کو مدد کے لیے پکارتی ہے، بلکہ زور سے اور زور سے کام کرتی ہے. دنیا میں ایک شخص ہے انٹارکٹیکا کا، وہاں پر
चींटियां नहीं होती, बाकी पूरी दुनिया के अंदर कीड़ियां हैं। वहां पर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर सिर्फ बर्फ पड़ती है और ठंडी जगह के ऊपर कीड़ी नहीं रहती। और वो गर्मी के अंदर अपनी तमाम चीजों को, खुराक को, ख्वारिश को जमा करती है और क्या करती है? जब वक्त आता है तो फिर उसको इस्तेमाल करती है। हालेलुया। तो हम जो है सबत के रोज भी ख्वारिश को जमा करने में लगे रहते हैं, खुराक को जमा करने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि शायद हमारे पूरी पड़ जाएगी, लेकिन पूरी नहीं पड़ती। मैं देख रहा था उसके बारे में, मैंने सुना कि लिखा है कि उसकी जो घर है ना, यहां से कराची कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है? तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर। कितना? 1200-1300 किलोमीटर यहां से सफर है। और चींटियों का एक मुल्क के अंदर घर देखा गया तो वो तकरीबन 4700 किलोमीटर उनका जमीन के नीचे घर है। कितनी बड़ी उन्होंने नीचे अपनी एक महल बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, और वो सब मेहनत से बनाया हुआ है। साहब लगाए 1200 किलोमीटर यहाँ से कराची है, और इससे भी बड़ी नीचे उन्होंने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ जहाँ पे वो रहती है, और सब खुराक क्या करती है? वहां पे जाकर जमा करती है। खुराक कहता है उन्होंने बोलो सीख लो, ठीक है? क्यों खुदा ने चींटी का जिक्र किया? क्योंकि चींटी के अंदर ये क्वालिटियां हैं जो इंसान में होनी चाहिए। आज अगर हमें कोई ड्यूटी दी जाती है या कोई काम दिया जाता है, वो हमारे ऑफिस में हो, वो हमारे घर में क्यों ना हो, हम उसके अंदर परेशानियों को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हमारी जिंदगी के अंदर कोई भी चीज अगर हमारे अंदर आती है तो हम नहीं करते, बल्कि इब्लीस आके उनको खराब करना शुरू कर देता है, और हम उन चीजों को समझ नहीं पाते। हम उन चीजों को अपने पर हावी करके और अपने लिए मुसीबतों को खड़ा कर लेते हैं। खुदा कहता है, काहिन जा और उस चींटी से सीख जो दानिशमंद है, और दानिशमंद बन जा। अगर वो दानिशमंद ना होती तो ये लफ्ज ना लिखा होगा। लिखा है चींटी के पास जा और उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमंद। तो फिर हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आज हम अक्सर ही चींटियां ऐसी मार बोल देते हैं, पैरों में बच्चे रोन देते हैं, हम खुद मार देते हैं, बाज़ औक़ात में या तो बहुत इनको मार दो। नहीं मारना चाहिए, वो भी जानदार है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, छोटा सा जानवर है, छोटा सा कीड़ा है, और खुदा कहता है उससे सीखो। तो खुद भी ध्यान करें और इन चीजों के ऊपर गौर करें। चौथी बात जो चींटी के अंदर है वो ये है कि वो अपने अच्छे वक्त के लिए जमा करती है। क्या करती है? अपने अच्छे वक्त के लिए में जमा करती है। आज मेरे ऊपर आपके ऊपर अच्छा वक्त है कि नहीं है? हाथ सलामत है, टांगे सलामत है, ठीक है, जिस्म के सारे अज्जा काम करेंगे। हमारा कौन सा वक्त है? ये अच्छा वक्त है, और हमें पता है कि इस अच्छे वक्त में हमें अच्छा खजाना जमा करना है। और खुदा का कलाम कहता है आसमान के ऊपर बटुए बनाओ। कितने बनाने बटुए? ये जेब वाले बटुए नहीं, आसमान पर बटुए बनाओ जिसमें ना तो चोर नकब लगाता है, ना कीड़ा हाथों से खराब करता है, और ना ही वो चीज कहीं जाया होती है। आज ये अच्छा वक्त है, और वो अपने अच्छे वक्त में अच्छी चीजों को जमा करती है। और आज हम अपने अच्छे वक्त में अच्छी चीजों को नहीं बल्कि बुरी चीजों को जमा कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हम क्या जमा कर रहे हैं? अच्छे वक्त में बुरी चीजों को जमा कर रहे हैं, बुरी चीजों की तलाश में कर रहे हैं जो वक्ती है। जो चीज वक्ती है वो बुरी है। जो चीज वक्त में आपको सिर्फ शेयर करती है और उसके बाद उसके एंड के कोई मामलात नहीं है तो वो बुरी है। चींटी की जो चौथी बात हम सीख रहे हैं वो अच्छी बात क्या है कि वो अच्छे वक्त को जाया नहीं करती, उसमें जमा करती है, बहुत सारा जमा करती है। और फिर जब उस पे बुरा वक्त आता है, जब ठंड आती है, जब वो खाना इकट्ठा कर की सकत में नहीं होती, तो फिर वो जो जमा किया होता है उसको खाती है। इसी तरह आपको और मुझे पता है कि यीशु की आमद, यीशु का वक्त आने वाला है, मेरे और आपका अच्छा वक्त आने वाला है, और हम उस अच्छे वक्त को जाया कर रहे हैं। किस तरह? अपने कामों में रहकर, अपनी चीजों में रहकर, अपनी ख्वाहिशों में रहकर, अपने खानदानों को नाराज ना करके। अगर उठे तक आते नाराज हो जाएंगे, लेकिन खुदा नाराज हो जाते पावे हो जाए। कल मैं कह रहा था, बेटी जली है वो छोटी इसकी, तो मैं चीजा और मैं बैठे हुए थे, किरण भी बैठी थी, मैं क्या हल्का सा जली है तो कितना जलन हुआ है। कभी गौर करो कि जो उसी उत्ते जाके जो लोग सड़ेंगे उन्होंने की हाल होगा। आग की भट्टी है पर, और वो किसके लिए बनी है? बताएं मुझे जरा। गुनाहगार के लिए। असल में तो वो बनी है इब्लीस के लिए। असल में वो किसके लिए बनी है? इब्लीस के लिए। और जो इब्लीस का पैरोकार है, जो इब्लीस के पीछे चलता है, जो इब्लीस की जैसे काम करता है, फिर वो भी उसमें डाल दिया जाएगा। ये आपके और मेरे लिए नहीं बनी,
हालेलुया। किसके लिए बनी है? ये इब्लीस के लिए और गुनाहगार के लिए बनी है, आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनी। और उसमें अगर आप नहीं जाना चाहते तो फिर इस अच्छे वक्त के लिए जमा करें, जैसे चींटी अपने अच्छे वक्त को जाया नहीं करती और उसमें अच्छे काम सारे करती है, क्योंकि उसकी दौड़ ही कहीं तक है। उसकी दौड़ क्या है? उसकी दौड़ यही है, क्योंकि जानवरों का तो कोई आखिरी में हिसाब सुन नहीं होना। क्यों होना? नहीं होना। किसी जानवर, किसी जंतु का कोई हिसाब नहीं। हिसाब किसका होना है? मेरा और आपका। हिसाब किसका होना है? जिसको खुदा ने अपनी छवि दी। हिसाब किसका होना है? जिसको खुदा ने अपने हाथों से बनाया और सारा इख्तियार बख्शा। कलाम ने लिखा है, हम सुनते हैं अक्सर, खालिद ने कहा कि इंसान फरिश्तों का क्या करेगा? इंसाफ करेगा। साहब लगा लो, खुदा इंसान को इतना प्यार करता है कि जब वक्त आएगा तो खुदा अपने लोगों को खड़ा करेगा कि चलो सिस्टम करो। उसको जो दुल्हन है, उसको जो उसकी फिक्र करती है और अच्छे वक्त को जाया नहीं करती, बल्कि उसके साथ दुआ और बंदगी में रहती है। हालेलुया। आज हम रोजे रख रहे हैं, लेकिन दुआ और बंदगी नहीं है। रोजे सिर्फ रोजे है। मैं अपनी कलीसिया में भी कह सकता हूं उस बात को, लेकिन दुनिया के अंदर भी लोग जो हैं वो रोजे रख रहे हैं, लेकिन वो सारे रोजे नहीं रख रहे। कलाम इस बात की पहले तस्दीक कर चुका है कि खुदा का रास्ता तंग और क्या है? सुखड़ा, और उसमें से गुजरने वाले कितने हैं? बहुत थोड़े। क्यों? क्योंकि जो भी रोजा रखते हैं, जो भी खुदा की हुजूरी में चलते हैं, जो भी खुदा के साथ चलते हैं, वो पूरे तौर पर नहीं चलते। जैसे इस चींटी के बारे में हम देखते हैं कि अपने काम को एंड तक करके सांस लेती है। हम नहीं करते, हम थक जाते हैं। हम किसी न किसी बात को मुद्दा बनाकर उसके सामने खड़े करते कहते नहीं, अब नहीं हो सकता, नहीं, क्योंकि मेरी अना का मसला है, मेरी जिंदगी का मसला नहीं, मेरी इज्जत का मसला है। कलाम कहता है इज्जत तेरी बताएगा याकूब का खुदा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जत बढ़े, आपका नाम हो लोग के लिए वाकई यार ये बंदा है, वाकई नहीं ये बंदी है, तो इसके लिए आपको अपने आप को मारना है। हालेलुया। अपनी खुदी का इनकार करना है और अपने आप को खुदा की हुजूरी में पेश करना, जैसे उसका बेटा यीशु का। हालेलुया। खुदा से बाप से कहा करें, ऐ बाप तू हमें अपने बेटे यीशु की मानद बनने का फजल बख्श। हम तेरे बेटे यीशु की मानद बनना चाहते हैं, तू हमारी मदद कर। अच्छे वक्त को जाया न करें, बल्कि उसमें सब कुछ इकट्ठा करें, जैसे चींटी ने किया। फिर इसके अंदर जो बात लिखी हुई है छठी आयत की, छठे बाब की 11वीं आयत में, इसी तरह मुसल्ला हजार की तरह तेरा तंगदस्ती मुसल्ला आदमी की तरह तुझे आके क्या करेगा? पकड़ लेगा। जैसे चोर लकब लगा के बैठा होता है ना दरवाजे के ऊपर, उसने तलवार लगाई होती है, गन भी लगाई होती है, वो देखता बंदा यहाँ से गुजरेगा उसे पकड़े और डाकू आपसे चुरा लेता है। इसी तरह इब्लीस दरवाजे पे दबका बैठा है। जब आप कमजोर होकर यहाँ से निकलते हैं तो वो मुसल्ला आदमी, वो इब्लीस जो अपने पूरे बुरी चीजों के साथ जकड़ा हुआ बैठा हुआ है, वो अपनी चीजें आप पर डालता है और आपको बीमार, परेशान और रुसवा करता है। आज बीमारी कहाँ से आती है? मुझे बताया। यीशु किसी को बीमार करना चाहता है? क्या कलाम में लिखा है कि यीशु की तरफ से बीमारी आती है? बीमारी किसकी तरफ से आती है? इब्लीस की तरफ से। इब्लीस आपको, जब आप उसके पैरोकार बनते हैं तो वो आपको गिफ्ट देता है, और उसके गिफ्ट पता क्या होते हैं? शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और ना गंदी गंदी बीमारियां। वो आपको, उन लोगों को जो उसके साथ चलते हैं उनके गिफ्ट्स ये हैं। लेकिन जो लोग यीशु के साथ चलते हैं उनके गिफ्ट्स क्या हैं? हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। जो लोग यीशु के हुक्मों पर चलते हैं उनके लिए जिंदगी का ताज है। हालेलुया। जो लोग यीशु के साथ चलते हैं उनके लिए आसमान के ऊपर यीशु ने घर बनाया। कहता है जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। इधर आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऊपर मेरा और आपका मुनज्जी मेहनत कर रहा है। और वो क्या मेहनत कर रहा है? वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है, वो मेरे और आपके लिए घर तैयार कर रहा है, जहां पर मैं और आप क्या करेंगे? सुकून के साथ रहेंगे, उसके नाम के दुआ बनेंगे। पांचवी बात जो चींटी के अंदर है वो ये है कि वो दूसरों की मदद करती है। चींटी क्या करती है? दूसरों की मदद करती है। जब कुछ चीज लेकर जा रही होती, चींटी मैंने बता रहा था आपको कि जब वो कुछ चीज लेकर जा रही होती है, उससे गिरती है तो दूसरी ऑटोमेटिकली आके उसके साथ जुड़ जाती है। एक भारी चीज होती है, चींटियां कितनी होती है? पूरा झुरमट सा बना होता है, और वो उसको लेकर आगे आगे जा रही होती है।
जा रही होती नहीं जा रही थी, और जब वो अपनी जगह पे पहुंचती है तो आगे मजीद चूंटियां खड़ी होती हैं और वो उससे लेती है और वो टुकड़े टुकड़े करके अंदर गार में ले जाती है, और दूसरी फिर वापस टर्न करती है और फिर वो अपने काम पे लग जाती है। देखा ना कभी किसी ने, मैंने बड़े गौर से देखा, चूंटियां जा रही होती है, वो चीनी है, वो चावल है, वो कोई भी चीज है, कोई कॉकरोच आप मार के फेंक दे तो वो उसको तोड़ती है, टुकड़े टुकड़े करती है, और जो टुकड़ा हैवी होता है उसके साथ 4 5 8 10 चिपकी होती है, और वो ऐसे कीड़ा जा रहा होता है जैसे कीड़ा जिंदा है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे की मदद करती है। और मजे की एक और बात बताऊं, ये जो चूंटी है ना, ज्यादातर अंधी होती है और बहरी होती है। कभी ये बात सुनी आपने? ये दो चीजें आज आपको मैंने नहीं बताई है। एक तो उसकी उम्र, जो उनकी बलका है, जो बड़ी चूंटी है, कितनी उम्र मैंने बताई आपको? 30 साल। और दूसरी इसकी अहम बात बताऊं कि ये एक तो अंधी है, सही तरह देख नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। ये भी मैंने इसकी स्टडी की है और मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ठीक हो गया? और बावजूद इसके जो ना देख सकती है सही तरह और ना सुन सकती है, पर वो मदद कर रही है। हालेलुया। यीशु कहते हैं तो जा और सीख और दानिशमंद बन जा। मेरे पास आपके पास आंखें हैं, लेकिन हम देखते हुए भी नहीं देखते, कलाम में कलमबंद है। खुदा कहते हैं जा और उसकी मदद कर, दानिशमंद बन, आप उसका जोर बने, आप उसकी ताकत बने। यीशु कहता है उस चोटी से सीख लो। हम मरे हुए को मारते हैं, हम गिरे हुए को गिरा ही रहने देते हैं, हम कमजोर का कभी जोर नहीं बनते। कलाम कहता है उसका जोर बन जाओ। चूंटी की क्वालिटी हम देख रहे हैं, जो पांचवी क्वालिटी है उसकी, वो मददगार है। वो अपने लोगों की, अपनी दोस्तों की, अपनी बहनों की, जो भी रिश्ता है उनका, वो उसकी क्या करती है? हम आपस में यूनाइट नहीं है, हम चर्च में यूनाइट नहीं है। आज चर्चों के अंदर हालात जाके देखें आप, टूट फूट का शिकार है। खादम के साथ एल्डर्स की नहीं बनती, एल्डर्स के साथ खादम की नहीं बनती, वर्शिपर के साथ एल्डर्स की नहीं बनती, वर्शिपर के साथ खादमों की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि यूनिटी नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि एतमाद नहीं है। खुदा के साथ जो रिश्ता है वो सबसे बड़ा मजबूत रिश्ता क्या है? ईमान का और एतमाद का। जो ईमान कर सकते हैं वो एतमाद करते हैं। मेरा ईमान है यार, उस बंदे ने वो करेगा। हम कहते हैं ना सर, वो मेरा एक बंदा है यार, मेरा बड़ा दिल कहता है वो देखो कुछ मांगिया मुझे मिल जाएगा। भरोसा करते हैं ना? नहीं, मुझे पता है, मेरा भी भरोसा समटाइम होता है। मैं कहता नहीं यार, मैंने आमद को कॉल करनी है ना, मुझे पता है मेरा काम हो जाएगा। क्यों? मेरा भरोसा है। और काश ये भरोसा हम आमिर के साथ साथ जिंदा खुदा पर भी रखें। हालेलुया। जब हम जिंदा खुदा पर ईमान और भरोसा रखेंगे तो फिर हमारा चर्च टूट फूट का शिकार नहीं होगा। ये चर्च के लिए मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने रातें भी जागी हैं। इसको आप इसकी हालत तकरीबन सारे ही वाकिफ है। यहाँ पे जो बैठे थे, खंडर था ये। जब मैं इधर आया तो यहाँ पे कूड़ा था, कट पता नहीं गंद था, ठीक है, दरवाजे अंदर बुरे हालात थे, ये खिड़कियां बुरी हालात थी, और ऐसे लगता था यहाँ पे पता नहीं कौन कोई इंसान रहता ही था। आज इसको देखें, दिल करता है यहाँ पे बैठने को, दिल करता है इस पे टाइम स्पेंड करने को, दिल करता है सो भी जाए यहाँ पे। मैं आता हूँ यहाँ पे, मेरा दिल करता है यहाँ पे सो जाऊँ। इतना सुकून, इतना इत्मीनान, इतनी तसल्ली। मैं रात को 4 बजे भी कभी इसको देख रहा होता ना घर में बैठ के कैमरे से, तो इतना सुकून मुझे यहाँ पे लगता है कि वाकई यहाँ पे खामोशी, सन्नाटा है, बिल्कुल अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ पे रोशनी होती है। ये कैमरे के अंदर कोई लाइट ऐसी है, अंदर बिल्कुल जगमग जगमग हो रहा है। अजीजों, आप अपने अंदर यूनिटी को पैदा करें, जैसे चूंटी के अंदर यूनिटी है, ठीक है? कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपस में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा या कोई बात आप ऐसा हो आपको अच्छी न लगे, तो आपके नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु हमें ये तालीम नहीं देता कि हम दूसरे के मुंह पे तमाचा मारें। कि यीशु ने तालीम दी, यीशु ने कहा अगर तेरे मुंह पे किसी ने तमाचा मारा है तो क्या करना है? दूसरा कान। तो फिर यीशु की मानद बनना है। किसकी मानद बनना है हमें? यीशु की मानद बनता है। और यीशु इसीलिए कहता है कि ऐ काहिल, जा उस चूंटी से सीख और दानिशमंद बन जा। हम इतने सुस्त हैं कि अक्सर बात देखते हैं हम बाथरूम में नहीं जाते। कई लोग ऐसे भी हैं, गौर करें जरा, अपनी जिंदगी में गौर करें। बात हम बिस्तर पे लेटे होते हैं, इतने सुस्त हो जाते हैं कि बाथरूम में नहीं जाना, और वो जाना तो बिल्कुल कमेंट का लगा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मैं गलत नहीं कह रहा। अगर मैं गलत कह रहा तो मुझे बताया। ये इसलिए बता रहा हूँ, कलाम कहता है इससे सीखो, अपने अंदर से सुस्ती कायली खत्म करो।
नकदे टाइम आया होता है चर्च का, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। चर्च का टाइम क्या है? हम कितने बजे चर्च पहुंचते हैं? 4:30, 4:45, कई थे 5 बजे। ऐ काहिल, इस चूंटी से सीख और दानिशमंद बन जा। तुझसे पहले तेरा आसमानी बाप मज़बा पर तेरा वेट कर रहा है। मेरी बेटी, मेरा बेटा आएगा, मेरे से बात करेगा, मेरे से रफाकत करेगा। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। क्यों आप अपने आप को सुस्त और कायल करते हैं? हाथ पड़े रहने को हाथ पे हाथ रख, एक और नींद की झपकी है, बहुत सोना है। अबदी इंतजाम है हमारा ऊपर, अबदी नींद, अबदी इंतजाम आसमान के ऊपर है, जहाँ पे हमने सुकून से जाके रेस्ट करनी है, खाना पीना मौज करनी है, कोई काम नहीं करना। अभी जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। ये कलाम के अंदर लिखा है। और छठी बात जो इसके अंदर है वो क्या है कि अगर ये कुछ लेकर जा रही होती है अपनी उस गाय की तरफ, तो रास्ता बंद हो तो क्या करती है? गौर करें जरा, ये क्वालिटी है जो खुदा आपको सिखाना चाहता है इस कलाम के वसीला से। अगर वो जारी है, आप खुद आजमा लें। इस एक सुराख है, उसको जारी है, आगे आप उसमें कुछ चीज रख दें, वो क्या करेगी? वो रास्ता ढूंढेगी, क्योंकि उसने अपने काम को एंड तक, मैंने पहले बताया, पूरा करना है। उसने अपना काम किए बगैर नहीं हटना। वो रास्ता ढूंढेगी और दूसरी जगह से रास्ता बना लेगी। और जब एक कीड़ी उस तरफ जाके रास्ता ढूंढ लेती है, तो दूसरी कीड़ी है ना तो पीछे पीछे हो जाती है। वो उधर जा रही है, उनकी स्पीड कभी आप देखें, दिखाई उन्होंने नहीं देता, आवाज उन्होंने नहीं आती, रिश्ता में तो पता नहीं, सानू नहीं की ये भैन है, थी है, मामा है, चाचा है, बापू भी है, कौन है सानू नहीं पता, लेकिन वो फॉलो कर रही है, वो फॉलो कर रही है उसको जो आगे है। बड़ी गहरी बातें हैं कलाम के अंदर। खुदा कहता है ऐ काहिल, ऐ सुस्त, इहदे कोलों सीख ते दानिशमंद बन जा। इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अगर घर में से 2 लोग आ रहे हैं तो दूसरे ने देखना कि किधर जा रहा है। प्रेज़ गॉड, बड़ी गहरी बात है बेटे, ये मजाक तो है ही नहीं है। कलाम जो है वो मजाक नहीं है, वो आपके लिए मशले राह है, वो आपकी राह के लिए रोशनी है, वो आपके कदमों के लिए चिराग है, वो आपके लिए रास्ता बनाता है। क्यों हम सोचते हैं, क्यों हम अपने दरवाजे खुद बंद किए हुए, क्यों हम खुदा के उस कलाम को नहीं समझते और कहते हैं नहीं अब हम पढ़े हैं तो भी पढ़े। गर्मी के मौसम में वो अपनी खुराक मुहैया कर लेती है। आज आप क्या नहीं समझ लें, गर्मी का मौसम ही है, जो ठंड आ जानी है ना, जो यसू ने आना है वो ठंड ही होनी है। फिर नहीं समझ आना केड़े पास जाओ, फिर कहना है टीलो ए पहाड़ों पे टूट पड़ो, साड़ी जान किस तरह निकल जाए। डरे उस वक्त से, डरे उस दिनों से, डरे उन हालातों से, और आज अक्लमंद और दानिशमंद बन जाए। इस कलाम पर तवज्जो करें, इस पे गौर करें। मैं दोबारा आपके लिए आयत पढ़ता हूँ। ऐ काहिल, चूंटी के पास जा और उसकी रवश पर गौर कर और दानिशमंद बन जा। 5 क्वालिटी मैंने आपको उसकी बताई है, ठीक है, जो बावजूद ये कि उसका ना कोई सरदार और ना ही कोई नाजिर ना हाकिम है, ना उनको समझाने वाला, ना उनको कोई दसण वाला, ना उनको कोई फोन करने वाला कि तू ऐसे करना है, तू ऐसे करना है, खुद वो काम करती है। इसलिए आप अपने काम खुद किया करें। मुझे कॉल ना करनी पड़े कि पादी साहब कॉल करेगा तो गिर जाना है। आपको पता है जुमा इबादत का दिन है, आपको पता है संडे इबादत का दिन है, ठीक है। जुमे का टाइम हमारा 4 से 6 है और इतवार का टाइम हमारा 3 से 5 है। और ये संडे है ना, इसको तो आपने 3 बजे ही आना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसकी वजह पता क्या है? 3 बजे खादम यहाँ पे मेरे पास मौजूद होंगे, वो कराची से आए और वो इतने पाबंद है टाइम के, उनके साथ मेरे रूहानी बाप भी आ रहे हैं और वो तो टाइम के, मैं कहता हूँ दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, अपने वक्त से आगे पीछे नहीं होगी। और जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कदर नहीं करता। हालेलुया। तो फिर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे खिदमतगुजार भाइयों, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ कि आज के बाद आपकी जो जिंदगी है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, उसके अंदर यीशु का डिसिप्लिन हो। चर्च टाइम पे आना है,
3 से 5 है तो 3 से 5 ही आना है, ठीक है। और जुमे की इबादत तो 2-3 हफ्ते रह गए, उसके बाद ये वाइंड अप हो जाएगी। उसके बाद फिर हम नया सेशन बनाएंगे जिसमें जुमा या जुमेरात को दिन डिसाइड करेंगे आपके कहने पर कि हम यहाँ पे बैठे खुदा के साथ वक्त गुजारें, अपना ताल्लुक खुदा के साथ मजबूत करें, अपनी रूहानी आंखें खुदा से मिन्नत करें कि वो खोल दे, अपने रूहानी कान खुदा से कहेंगे वो खोल दे, ताकि हम सुन सके, हम देख सके और खुदा हमें बरकत दे। इन खास बातों को अपनी जिंदगी के अंदर काम करने दें ताकि आप ब्लेस्ड और बाबरकत हो जाए। हालेलुया। इस कलाम की समझ में आई, तालियां बजा के पढ़ें। और ये कलाम मैंने खुदा का आपको दिया, मेरा नहीं है, लेकिन मैंने आपको डिलीवर किया। हालेलुया। और ये कलाम जब आप इस पे गौर करेंगे, घर भी जाएं, इसको गौर से पढ़ें, इस पे तवज्जो करें। अगर आप नहीं पढ़ सकते, बेटी को बोलें, बेटे को बोलें, अगर वो भी नहीं अवेलेबल तो आप अपने फोन को खोलें, उसमें डिजिटल बाइबल खोलें और इस आयत को खोलें, इंसान 6 बाब उसकी 6 आयत, इसको पूरा पढ़े, आपको पता लगेगा खुदा आपसे क्या बात कर रहा है और क्या आपको करना चाहिए। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे।